ऐसा महसूस किया कि आफ्टर इवन डी एग्जाइल में अपने आप को महसूस करते हैं? नमस्कार रुचि जी। नमस्ते। नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि आप एग्जाइल में हैं इवन आफ्टर डीकमिशनिंग ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू? First of all, thank you, Gaina, for inviting me here. It's been a real pleasure. So, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 370 removal of 370 is kind of the first step. और उसके बाद there are a lot of other subsequent steps that we have to go for. एक तो political consolidation होना चाहिए हमारे society का, and second is the cultural aspect. तो हम लोग अभी दरवाजे खुल गए का कोई जगह नहीं मिलेगा. It is not yet, we're not still there. So it will still be a little while away that we still need a lot of support from the government and from the people of India and from everyone else who's associated with Kashmir as a cause for us to go back and resettle. It's also, I feel it's also important to highlight here that as a community, we have been out for now 31 years almost. And that's a huge amount of time. If you look at it from a lifespan of a regular average person, that's half of the average lifespan. So we were the people whom we are trying to kind of resettle back, our kids, our parents who are now pretty old, and us. So we'll have a very big challenge going back and resettling there from a cultural aspect also. So that those are things which I feel as a community also and our government also needs to reconsider. And with every passing day, we are kind of getting away. Our culture is dying. So it's very important that the resettlement happens very, very quickly as possible. And that for me is the first, the next step kind of. And uska ek necessary element hai ki there's also a political consolidation that happens. And that could also be in terms of, let's say, all of the Kashmiri Pandits having a place back in the valley. Yeah. So unless that happens, we already had 7 exoduses from that place. So it should not be that we are going back and preparing for an 8th one. So this time when we go back, we should have a very solid plan of how we are going to stay there for the next, so all the years, because if we just go and we are resettled back, ek ghar yahan, ek ghar wahan, it will not really work out for us. We'll again be in a situation, we are always in minority. So in that sense, I really support the demands that we have from the Kashmiri Pandit organizations like Panam Kashmir, which say we need a homeland, we need to have 1 Lok Sabha seat. So something which will help us consolidate our position within the valley and also help us preserve our culture. क्या हमें ऐसा कंसिडर किया जाता है एज लेस ऑफ एन इंडियन इफ वी आर आउट ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज हमें रिफ्यूजीज ही कहा गया है आज तक. कश्मीरी पंडित वो लोग जो अपनी जगह छोड़ के आ गए क्योंकि उनकी जगह उनसे छीन ली गई. क्या आप आज भी ऐसा फील करती हैं कि ये जो एग्जाइल है ये एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी हमारे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर अभी ये डिकमिशनिंग हो गई है, क्या अभी भी ऐसी फीलिंग आती है जबकि देयर इज अ कॉल फॉर कमिंग बैक? और डोमिसाइल वाला भी अब इशू इतना नहीं रहा है क्योंकि कोई भी अब वहां पे जमीन खरीद सकता है. तो अभी भी आपको ऐसा फील आता है कि नहीं, ये जो हुआ है डीकमिशनिंग, कहीं ना कहीं ये स्पेशल स्टेटस हमारा जो है ये सिर्फ एक ही सेक्शन या एक ही फैक्शन को वैलिडेट करने के लिए था? डेफिनेटली आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पूरे इंडिया के हिसाब से देखें तो स्पेशल स्टेटस किसी भी स्टेट का अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ इंडिया इज टोटली अनफेयर. ये वैसी बात होगी कि आपके घर में 4 कमरे हैं, आप बोलते हो कि भाई एक कमरे में एक आदमी जो रह रहा है वो हर जगह जा सकता है, लेकिन बाकी कमरों में जो लोग रह रहे हैं वो कहीं नहीं वो इस कमरे में नहीं आ सकते. तो ये तो बहुत ही अनफेयर. एज अ फैमिली, एज एन इंडियन फैमिली, हमारे यहाँ पे किसी भी स्टेट का कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए. और ये एक एंड इंडिया इज ऑलरेडी बहुत ही डाइवर्स कंट्री है हमारा. तो हमारे ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं in terms of cultural diversity, language, religion, and if we are or ऐसे we have these wedges which we are trying to promote. So I feel those are very wrong, because eventually from a long term perspective they will not be in favor of India as a nation. Okay. Therefore 370 going is not only a great thing for the Kashmiri Pandits and the rest of the
Jammu and Kashmir population, it is also the biggest thing for India from a long-term perspective. Yeah. Another thing I want to quickly say, because I've heard this quite a lot of times, and I always wanted to kind of share this with somebody, कि अगर हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर तो हम सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं somehow, हाँ. तो हमारा ऐसा एक प्रोजेक्शन हो गया है पूरा मीडिया में और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ऑल द मीडिया हाउसेस, कि वो हमेशा ही सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं. बट कश्मीर इज नॉट द होल थिंग. आई मीन वी ऑलरेडी नो कि हमारा कश्मीर का जो पॉपुलेशन है दैट इज ओनली आई थिंक सम 60% और 58% ऑफ द टोटल जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन. तो वहाँ बुद्धिस्ट भी है, वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ शिया मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ऑब्वियसली हिंदूज हैं, सिख हैं. तो हमारा somehow total discourse within the Indian media is always on the Sunni Muslim discourse, the core valley Muslims. But we also have what do you call them? Bakarwals, yes. Yeah, the Bakarwals. And they as a community are also as much an Indian as the rest. We should also remember जब करगिल का वॉर हुआ था तो it was the बकरवाल जो आके इंडियन आर्मी को बताए थे कि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो गया है. तो we miss out on these aspects. फिर जम्मू में डोगरे लोग हैं and Dogris are our first line of defense. They are what are keeping our state safe, India safe. कश्मीरी पंडित्स हैं, फिर लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं, लेह में शियाज हैं. तो मल्टी कल्चरल जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरियत बहुत, मतलब आप कहना चाहिए कश्मीरियत में सब आते हैं, उसमें धर्म का मुझे एक तो कश्मीरियत शब्द भी ना बहुत ही इट्स ऑल्सो वेरी वैली ड्रिवन. आई वुड से दैट. और somehow we try to equate this with कि हाँ भाई देखो कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी मुस्लिम बहुत साथ से रह रहे हैं, ये वगैरह वगैरह. आते सब हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, डोगरी भी हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब बहुत. मतलब थैंकफुली विद 370 गोइंग एंड the states kind of getting divided into 2 union territories. तो हमारे बुद्धिस्ट अब I mean Leh Ladakh basically area is thankfully I think it's out of this ruckus. Very happy for you guys. तो चाइना बौखला गया है, ये आर्टिकल 370 रिमूवल से गलवान वैली की तरफ आया तो चाइना भी बौखला गया है कि इंडिया अपनी टेरिटरी अब क्लेम कर रहा है, इंडियन अब फाइनली अपने इंक्लूड कर रहा है, कहीं वो लेह लद्दाख को भी ना ले ले. तो अब ये भी चीज आती है सामने डीकमिशनिंग के बाद कि धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर को कैसे लेने की कोशिश की गई है बाय पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, ये भी आ रहा है. तो इसको कैसे अपना कहें, कैसे प्रोटेक्ट करें, बिकॉज हमारे एक मतलब अभी मेरे हिसाब से द नेक्स्ट स्टेप इज अ लॉट टू डू विद कल्चरल इंटीग्रेशन. और कल्चरल इंटीग्रेशन बहुत ही टैसिट होता है. इट्स नॉट वेरी एक्सप्लिसिट, इट्स नॉट वेरी लाउड, एंड आई होप दैट आवर गवर्नमेंट इज रियली वर्किंग ऑन दिस. ये एक चीज है जो बिल्कुल आपने सही कही, कल्चरल इंटीग्रेशन है जो अभी सरकार को उस पर काम करना चाहिए. वो अभी तक मेरे ख्याल से डीकमिशनिंग के आर्टिकल के जो रिपरकशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ कर रही हैं, तो उसी को वो आग को बुझाने में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है उनको कोई दिक्कत नहीं है. लोगों को मेरे ख्याल से काफी, जैसे अब मैं आपसे पूछूंगी कि मेरा ये अगला सवाल यही है कि हाउ डू यू थिंक जो अपना डीकमिशनिंग आर्टिकल 370 हुआ है, क्या ये स्पेशल स्टेटस हटने के बाद विमेन एंड जो माइनॉरिटी है वहां पे है, लोग हैं, उनके लिए क्या ये एक बोन बना है या बेन बना है डीकमिशनिंग ऑफ आर्टिकल 370? उनके लिए क्या आपको लगता है कि क्या अप्रोच रही है, क्या इसको लेके वो कैसा महसूस करते होंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग a piece of land or education or what? क्या उनके लिए कुछ ये है, मायने रखता है कि ये स्पेशल स्टेटस में था अब नहीं है? मतलब ये this is again like just imagine कि we are living in a society जहाँ पे 370 has been projected as a boon for women. So how wrong is our whole discourse? मतलब हमारा कितना driven, how prejudiced is the whole discourse for something. If you look at 370 and 35A, वो explicitly they are gender biased. They are basically kind of de-enfranchising women और उनके and their kids. And somehow still हमारे यहाँ पे conceptions बनाए जा रहे हैं in our media houses कि somehow बहुत गलत हो रहा है women के लिए. Which is so wrong. We already know कि जो हमारा 370, 35A था,
उसमें if a woman marries outside a non Jammu and Kashmir state subject, she would Yes, lose her right to property. She yes, would stop being a domicile essentially. yes. और उसके बाद 2002 में आई थिंक जब रूलिंग आई कि नहीं, women can will still be have the domicile, they can retain it, पर उनके बच्चे नहीं रिटेन कर पाएंगे. तो मतलब इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है. और फिर भी हमारे यहाँ से कोई भी जो भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं, फेमिनिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसमें किसी ने कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा. इनफैक्ट दे वर एंडोर्सिंग कि हाँ ये कश्मीरी विमेन वेदर they are from Muslim or Kashmiri Pandit families, they lose their rights, they lose their status. एंड जहां तक मुझे पता सक्सेशन का भी बहुत डिफरेंस रहा था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इन टर्म्स फॉर जो बाकी भारत देश में जैसे अप्लाई होता है. विमेन राइट्स काफी इफेक्ट हुए थे. तो अब आर्टिकल 370 के हट जाने से जैसे यूटी बन गया, तो क्या फर्क आपको लगता है कि आ सकता है विद द माइनॉरिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ, आई मीन ग्रेट क्वेश्चन. तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीधी बात ये है कि अब औरतों को भी सेम राइट्स हैं. सो देयर इज एन इक्वालिटी बाय लॉ, सो विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो अब चाहे आप कोई औरत कहीं भी शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि वो शी विल लूज हर राइट ऑन प्रॉपर्टी, और her kids cannot don't have succession on the property. So this is a very good point, and I think everybody in the country should applaud this. Because pehle aisa nahi tha. Second thing I think is more coming from the rest of the discourse. But jab 370 hata hai, so we are all hoping and we are all hopeful कि a lot of investment would be able to come in the state. तो बहुत ग्रोथ होगी. Hopefully it will be at a much faster pace than what we observed in the last 70 years and before. कोई डेवलपमेंट एवरी टाइम जब मैं जम्मू वापस जाती थी तो मुझे लगता था सब कुछ वैसे का वैसा ही है. इट इज सच अ स्टैटिक प्लेस. So I'm really hoping कि अब की बार जब हम जा रहे हैं तो we see a lot of development, we see a lot of good things happening for the people who are staying there. और ये development will also come back and start having very positive impact for the people, and that includes everybody. That includes people of all races, people of all religions, and also all genders. So women के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज आएंगे या कॉलेजेस आएंगे, people will invest, तो उनके एम्प्लॉयमेंट चांसेस बढ़ जाएंगे. वहां पे ओवरऑल ग्रोथ होगा तो सभी के लिए अच्छा होगा, इंक्लूडिंग वुमेन. सो आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव थिंग है विच वी शुड नॉट निगेट. एक और इसमें चीज है स्पेशली फॉर वुमेन, क्या होता है ना कि बहुत सारे we still are a very patriarchal society by and large, and that's agnostic of the religion we belong to. चाहे हम फिर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम obviously women are still not there where they should be. और बहुत ऐसे हेजिटेंस होता है. आई नो ऑफ अ कपल ऑफ केसेस अराउंड मी जहाँ पे बहुत हेजिटेंस था. फॉर एग्जांपल somebody, one of my schoolmates had got a seat in an NIT, but it was outside. It's just an example, I'm just sharing. वो उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, बोला नहीं स्टेट से बाहर नहीं जाओगे. राइट. तो ऐसा है, पर होपफुली with this with investment coming in, with colleges opening, with better facilities and better opportunities for the population in general, so a lot of women will also be able to reach far. Okay. नहीं, बट अगर हम ये कहें कि जैसे आपने एजुकेशन का लिया है, एजुकेशन सोसाइटी पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट विल हैव just to complete quickly from a long term society perspective, ये बहुत ही पॉजिटिव है. क्योंकि हम कुछ चीजें क्या होता है ना, कुछ चीजें इमीडिएट है, कुछ शॉर्ट टर्म है. अभी हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि यस वुमेन इक्वालिटी हो गया बाय लॉ, विच इज वेरी पॉजिटिव. और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में इसका इम्प्लीकेशन देखें तो डेफिनेटली है कि हमारी जो सोसाइटी है एज अ होल, बिकॉज वुमेन विल स्टार्ट be able to kind of take these opportunities which are now probably will be provided by people investing. So thoda it's more long term, but I think this will happen, and this ultimately will also help us be a more prosperous society. Yes, apart from that, इसी को आगे लेते हुए एक सवाल मैं पूछूंगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसे रहा है ओवरऑल इंडिया का, जिसमें दिखाया गया था कि हाँ आर्टिकल 370 इंटीग्रल पार्ट, स्पेशल स्टेटस, सब वी ऑल नो व्हाट वी हैव गॉन थ्रू. बट यही चीज जब हम कहते हैं डीकमिश्निंग के बाद उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कुछ
इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं, पॉलिटिकली फैंड भी कह सकते हैं। बट आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद इस चीज को फैन किया जा रहा है कि नहीं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ अन्याय किया गया है, जबकि ये जानते हुए भी कि दे वर ऑलवेज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनका रिहेबिलिटेशन आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर का पॉसिबल है? आर्टिकल 370 हटा दिए, इनको एजुकेट करना, इनको इस तरह के माइंडसेट से लिबरेट करना, जबकि ये खुद जानते हैं कि अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को, देयर हैव बीन टाइम्स कि वो बाहर भी भेजें। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है, जैसा आपने कहा, जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आती है, इकोनॉमिकली रेज होता है, एजुकेशन का आता है, तो क्या ये जो वहां पे रह रहे हैं लोग, जैसे सरकारी स्कूल बनने शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि मोस्ट आई थिंक बीएसएफ के स्कूल हैं या फिर प्राइवेट स्कूल हैं, क्रिश्चियन भी स्कूल नहीं है, बट अगर हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे, सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो क्या वो अपनी जो हिस्ट्री है बेटर समझ पाएंगे? या रिहेबिलिटेशन हर एक ईच लेवल, एक माइक्रो लेवल पे भी पॉसिबल है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि नो, इट वाज ऑलवेज दैट कि यू वर पार्ट ऑफ अस, यू वर नेवर डिफरेंट। तो ये रिहेबिलिटेशन कैसे लाया जाएगा? मतलब डीकमिश्निंग का, अभी इन्होंने सिर्फ डीकमिश्निंग की बात की, इन्होंने एजुकेशन पर्पज जैसे आप बोल रही हैं विद विमेन एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये चीज कैसे हम इसको, क्या क्या पॉसिबिलिटी लगती है इन फ्यूचर? मतलब फ्रॉम अगेन सी माय मेरा व्यू बहुत ही इट्स अ वेरी जेनरिक कश्मीरी पंडित व्यू, सो मे बी वी आल्सो नीड एक्सपर्ट्स टू कम इन एंड टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। बट मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हमारा एजुकेशन है इन जनरल, जब जब इन अ सोसाइटी जब हमारा इन्वेस्टमेंट होगा in that region of the country, Jammu and Kashmir as a whole, so obviously a lot of positive things will happen, right? As far as managing जो हमारा communication है, whether that's coming from the media, whether that's coming from the government, so we do need a more planned strategy, because आजकल social media है, हर तरह का media, आप आजकल कोई भी चीज ले लो, हाँ, and हम उसको गूगल में सर्च करें या यूट्यूब पे सर्च करें तो हमें 50 व्यूज मिल जाएंगे। So everything is existing on all levels of the spectrum. जी, मैं So एग्री you कर रही हूँ। मैं इसलिए मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि आपको भी पता ही होगा, अगर आप न्यूज पढ़ती हैं, कि शाह फैसल जैसे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, दे आर एजुकेटेड, काफी अच्छा वो अपना शो करते हैं, बट व्हेन डीकमिश्निंग की बात होती है, दे वांट टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना वो भूल जाते हैं कि आईएएस बने तो इट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दे वर पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन दे गेव दैट आईएएस की के लिए। तो फिर अब वही यही रिहेबिलिटेशन की बात इसीलिए आती है कि उनको कैसे, किस माइक्रो लेवल पे समझाया जाए कि यस, दे वर ऑलवेज पार्ट, बिकॉज एक इतना इंटेलेक्चुअल आदमी, इतना जो जिसने आईएएस क्लियर की, उसको तो वैसे हाईली इंटेलिजेंट कहा जाएगा, वो अगर ऐसी बातें करे, मीन्स इंटेलेक्चुअल, क्या कहते हैं उनको, लिबरल्स या फिर जो भी सेक्युलर, आई डोंट नो इफ दिस इज बीइंग सेक्युलर, ट्राइंग टू सेपरेट। अगर पंजाब भी बोलेगा नहीं जी पंजाब अलग है, गुजरात कहेगा गुजरात अलग है, साउथ इंडिया बोलेगा साउथ इंडिया अलग है, हम लोग अपने आप को इंडियंस कब कहेंगे? तो ये फीलिंग, मतलब रिहेबिलिटेशन से कैसे हम इसमें ला सकते हैं? क्या क्या इसको सोशल लेवल पे किया जाना चाहिए, मॉरल लेवल पे किया जाना चाहिए? रिलीजन इन डिफरेंसेस को कैसे, मतलब वहां पे हर जगह है ये, इट्स नॉट कि सिर्फ कश्मीर में है, गुजरात में भी है ये प्रॉब्लम, बट हम इस चीज को, हम बिकॉज हम अब कश्मीर को लेके बैठे हैं, तो इसमें वो रिहेबिलिटेशन लाइन को कैसे लाए, ये जो दूरियां हैं इनको करें तो कम कैसे करें? इसमें मुझे लगता है कि कल्चरल रिहेबिलिटेशन, दैट्स व्हाई आई सेड वो शुरू में कि कल्चरल रिहेबिलिटेशन एक बहुत की एलिमेंट है। अभी हमने हमारा थोड़ा कुछ हद तक हमने चलो एक पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेप 1 ले लिया है, पर उसके आगे मुझे लगता है सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंप्लीटली फॉल थ्रू। अदरवाइज ऐसा होगा जैसे बहुत बार पहले भी हो चुका है कि हम एक हाफ बेक स्कीम ले आते हैं। जैसे पहले स्कीम थी वो कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडितों को उधर रीसेटल करने के लिए उनको गेटोज बना के दे दिए। और फिर जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हार गया, पाकिस्तान मैच हार गया तो गेटोज में पथराव हो गए। तो दैट्स वो दोज आर नॉट गुड ऑप्शन। बहुत गलत, बहुत गलत, ये बहुत गलत है। हाँ, क्यों इन कश्मीरी पंडितों के साथ ही क्यों हमेशा ये होता है कि एक आवाम से वो लड़ते हैं तो दूसरी आवाम उसका बस और ये चीजें रिपोर्ट इतनी क्यों नहीं होती है, हाईलाइट क्यों नहीं होती? मैं यही जानना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडित लोग भी बहुत पेन से गुजरे हैं। आई हैव नॉट सीन एनी अदर कम्युनिटी ऑफ कश्मीर, ऑफ JNK
actually suffering so much as that of Kashmiri Pandits. ऐसा क्यों कि एक आवाम को इतना एक आवाम में इतना एक ही रिलीजन को इतना क्यों किताबित किया गया? और आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर की पूरी हिस्ट्री में ये चीज एक्नॉलेज नहीं की जाती? क्यों हम ऐसे पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और क्यों हमें कहा जाता है कि हम इस चीज को भूल कर आगे बढ़े? हम तो अगर भूलना भी चाहें तो हम भूल नहीं सकते, पर आगे तो हम बढ़ गए, बट क्यों? ऐसा क्यों? मतलब there are multiple आपके क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स है मुझे लगता है। तो एक जैसे मैं इफ आई जस्ट पिक अप द फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कल्चर इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। एंड कल्चर इंटीग्रेशन एटलीस्ट फॉर मी, इफ यू गो, अगर आप मुझे बोलेंगे कि भाई आप जाओ वापस और जम्मू कश्मीर में सेटल हो जाओ, और क्या आप कहाँ, वेयर डू यू वांट टू प्ले टेक ए हाउस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप वापस इन कश्मीरी मुस्लिम मेजोरिटी हाउस लेना चाहेंगे या in a new settlement with only Kashmiri Hindus? So my answer would obviously be with Kashmiri Hindus, because that's where the sense of security and that's where our culture can grow. Yes, yes. So that doesn't mean that we we have a lot of enmity towards the Muslims. No, but there is a fear. It also shows that there is a fear. There is a fear. So we don't feel safe going back to our land because there is a fear. If we still keep on denying that, तो that will not help us. As मैंने जैसे आपको बताया ना, मुझे लगता है अब की बार हम जब वापस जाएं, हाँ, और जैसे हम बोलते हैं वारकार वापस जाएं कश्मीरी में, तो अब की बार हमें we should go with a more strategic, more solid plan, or let's not be there for another exodus, हाँ. Yes, because ये कहना बहुत आसान है कि हम वेलकम कर रहे हैं. We have been told. We know the truth, and you know what I find very ironic is if you look at, we are from the same stock. Yes. Kashmiri Muslims are by and large the people, if you remove, let's say, the 5% people who came from Iran, Iraq, and the Turks and whoever else they were. Dar लगा होता है, अहमद दार. Dar is actually धर. हाँ, जैसे गिलानी है हमारे यहाँ, सईद गिलानी, whatever. Yes. So their own roots that they have come from Hindu. They are actually. हाँ, और वो सब लोग, आप किसी से भी पूछे तो मुझे ऐसा लगता है they all think कि वो सब बाहर से ही आए हैं. They are not the converts. They are not the persecuted Hindus who eventually converted over years of persecution. Everybody thinks वो सब बाहर से आए हैं. They are like the Mahan. They are happy to be like villagers and everybody. That's very ironic. क्योंकि वो हम लोग same stock से हैं. At the end of the day, they were also Kashmiri Pandits sometime back in future. Yes. But you just look at it from a cultural aspect also, and that's why I find very interesting, and that's something I feel we should also kind of think about as a country. अगर हम इसको cultural aspect से देखें तो ये वही population है जो पहले कभी जमाने में कश्मीरी Hindus थे. Before 1339, everybody was a Kashmiri Hindu. फिर बाद में जो 5% population आया बाहर से, शामिल इनको, that's another thing. और जो कश्मीरी हमारा हिंदू population है, ये वही converted है. Yes. And over this course of history, this is the same population who kept a sword on our head. Yes. Yes. How far have we come from? मतलब कितना दूर आ गए हैं हम from where we started? और कितने different आ गए हैं? Yeah, so I think religion is also a key component in the culture, whether we like it or not. Yes. So that means कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार अगर कश्मीरी पंडितों को कहती है कि आप आइए वापस, तो उनको खास करके करिकुलम में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड कश्मीरी पंडित एज वेल, एंड उनको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हमें भी लगता है कि कश्मीरी मुस्लिम्स भी वी आर फ्रॉम द सेम स्टॉक, हम तो भी एक ही इसमें थे, क्या हुआ? तो एक्चुअली शायद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वो भी आगे बढ़ते चले गए और अपनी हिस्ट्री भूल गए कि they were also persecuted ones, they were also forced to convert, and those who did not convert were told to leave the valley, to flee the valley. Actually, they were not even given much of the time. So we are the what do you say? We are the original inhabitants. Yes. तो हमारा 5000 साल का written history है. There's so much of inscription, so much of history already existing, which is undeniable. Yes. But still we have such a huge population which is being misled to think कि वो कहीं और से आए हैं. And I think ये जो है ना, ये उनको खुद ही they have to get up and open the doors and windows and understand what is happening. Yeah. So I think that there's also a step from the Kashmiri Muslim side which I see, which is first step for reconciliation of any kinds, which is to
agree कि भाई हाँ ये गलत हुआ था, which is also to agree and not deny the 1990 genocide of Kashmiri Hindus. क्योंकि Yes. आप बहुत बार मैं एक आध बार मेरे को कोई मिले हैं तो उनसे बात होती है तो उनसे नहीं वो जगमोहन ने भगा दिया और उसने ही वांटेड टू बॉम्ब कश्मीर. So see these are very ludicrous arguments, हाँ, तो we have to be Yes. very clear. Yes. 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 और ये जो है ना मतलब if you cannot make somebody see, they have to see it for themselves, they have to understand it for themselves. तो वो उनको खुद करना पड़ेगा, ये उनका पहला स्टेप है और उसके Uh, बाद आके वो हमसे मैं बात करें. मैं कुछ आपको इसमें रोकना चाहूंगी. मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ आपको पता होगा मिलिट्री फेस्ट होते हैं, तो देयर आर सर्टेन so called Kashmiri Muslim writers and all, and they write so much of things about the Indian army and everything, and their write up and everything. Though we have not been able to protect our Pakistan occupied वाला जो कश्मीर है, we have not been able to get it back. But कुछ ऐसा कहा जा रहा है, कुछ अलकले लगाई जा रही है कि इंडियन मिलिट्री आर्मी को कंसिडर किया गया एज एन एग्रेसर. ये लोग जो अपने राइटअप के थ्रू, कार्टून के थ्रू करते हैं एंड शो करते हैं, ये एक तरीके का क्या डिविजन नहीं है? दैट मीन्स हम अपनी कश्मीर की हिस्ट्री क्या गलत नहीं पोर्ट्रे कर रहे? क्या हमारी कश्मीरी लैंग्वेज से, कश्मीरी मुस्लिम से है, कश्मीरी पंडित से नहीं? क्या ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई? बाय एंड लार्ज उर्दू को महत्व दिया गया, विच इज टचवुड वेरी गुड. इट वॉज उर्दू, अरबिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आई डोंट डिनाई दैट. बट कितने आज हम आप कह सकते हैं कि आप और मैं जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको अपनी कश्मीरी मातृभाषा में कश्मीरी लैंग्वेज आती हो? क्या इस चीज पे भी कुछ रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में? क्या इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर देम टू नो कि शारदा तो थी ही, पर कश्मीरी लैंग्वेज भी एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो, ताकि वी कैन गो बैक टू आवर रूट्स और आवर चिल्ड्रन नो एक्चुअली, जो आपने कहा 5,000 से भी ज्यादा हमारा कल्चर का रहा है. तो ये लैंग्वेज का जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे हम आगे शो करें? प्लस जो इंडियन मिलिट्री आर्मी है, जो अपनी आर्मी है, जो प्रोटेक्ट करती रही इन्हीं लोगों को, उनको पथराव सहने पड़े. ये इस तरह की माइंडसेट मेंटालिटी से कैसे निकाला जाए? ये दिस इज द पॉइंट. आई मीन इसमें हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स. यस. तो इवेंचुअली हम चाहे हम एक ही स्टॉक से हैं बट इवेंचुअली अभी देखा जाए तो कितने डिफरेंसेस हैं, यस. कितना माइंडसेट चेंज हो गया है. और ये सिमिलरली माइंडसेट चेंज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. दैट्स व्हाई आई फील while the government बहुत सारे political initiatives ले रही है, it is also very important to look at the cultural aspect because that is what is going to be long lasting. हाँ, to educate them of the cultural aspect, cultural integration, not just. तो वो education कैसे होगा उसके लिए we should have a very clear plan which Yes. the government can drive at their level because it is a large scale. Academicians and experts जो कर सकते हैं. Yeah, so it's also by kind of looking at what is being taught. It also is by having a genuine interest in development. Huh? Let's not Yes. also forget that. Yes. Kashmir as a place is also stuck up in history. Yes. Yes. तो वहाँ पे भी बहुत डेवलपमेंट जरूरत है. तो गवर्नमेंट को should do that on a very fast, on a very at a very quick pace. Because एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स आए, तो वहाँ की कश्मीरी आवाम का जो है उनको पता होना चाहिए. हिस्ट्री का तो कुछ आइडिया ही नहीं. वो तो है. आप देखो ना अभी मैंने सुना है कि मैं बीच बीच में ये YouTube में देखती हूँ कि what do you can find all of this. Okay. what Pakistani is thinking and all that. Okay. And you realize कि उनका जो हिस्ट्री पढ़ाया गया है वो कितना डिफरेंट है हमारी हिस्ट्री से. Yes. That happens for all. Yes. I mean, you have those classic examples from communist Russia. Yes. So of how history has been rewritten. Yes. And this is a very critical component of all kind of propaganda, whether that's political or religious or whatever. Yes. So government of India has to counter it or build a very strong counter narrative to bring forth this change. So that means it has to be. That's why it has to be something which should be inured against any changes in Delhi government. अभी दिल्ली में अभी हमारा बीजेपी है तो हम सोचते हैं कि ठीक है वो थोड़ा प्रो कश्मीरी पंडित से, अभी बाद में कुछ और आ जाएगा तो वी डोंट नो. तो लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, अब की बार लेट्स नॉट लेट इट गेट derailed. So we should have a system which is very long lasting and agnostic of the political parties ruling Delhi. Yes, yes. And Because it has taken 70 years as to remove this temporary status, which had actually become permanent. Legally speaking,
ये तो टेम्पररी था, बट इसको परमानेंट बनाया गया। वहाँ का जो शिफ्ट होता रहा, रिलीजन बेसिस पे शिफ्ट होता रहा, लोगों को मलाई खानी थी, तो वो शिफ्ट होता रहा। लेकिन हाँ किसी ने मतलब तो किसी ने कश्मीरी पंडितों का इसमें नहीं देखा, किसी ने जो बाहर चले गए उनके बच्चों का भी नहीं पूछा। सो दैट इज देखो, एज ए कम्युनिटी वी आर एट अ वेरी बैड बैड प्लेस आई फील। हाँ, जी, जी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत बहुत खत्म हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि अगर हमने अभी अगले 10 सालों में लेट्स से हमारा कोई परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं निकलता है, जी, तो हमारा कल्चर विल डेफिनेटली डाई आउट, बिकॉज उसको प्रिजर्व करने का और कोई तरीका नहीं है। हम जी, लोग हर जगह स्प्रेड है। लाइक यस, अगर मैं अपनी मतलब आप कोई भी फैमिली ले लो, कश्मीरी पंडित फैमिली, जी, उनके जी, रिलेटिव्स आपको हर जगह दिखेंगे, एंड और एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यस, यस, बिल्कुल सही। राइट? सो यस, हम अब कैसे, हाउ डू यू इंटीग्रेट टुगेदर स्टिल, यस, हाउ डू यू स्टिल, बिकॉज फॉर एनी कल्चर टू सर्वाइव मुझे लगता है उसमें एक एक जो ये लोकेशन वाला एलिमेंट है दैट इज वेरी क्रिटिकल, लैंग्वेज यस, वाला एलिमेंट वेरी क्रिटिकल, बिल्कुल and the सही। second is to build up a, sense of togetherness or love within the community. यस, And these are cascading, these reside on top of each other. So पहले तो एक जगह होने चाहिए हम लोग, ताकि आप दिखें, आपको रोज वो बंदे दिखे जिनसे आपको उसी भाषा में बात करनी है, और बिल्कुल आप सही। उनसे बात करेंगे तभी आपका बीच में आपसी प्यार बढ़ेगा। अभी जी, क्या हो रहा है ना, हम हमारे हैं कितने यहाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 2-4 फैमिलीज हैं, और कहीं जगह 2-4 फैमिलीज हैं, तो यस, बहुत ही स्प्रेड आउट है। तो यस, उसमें वो हाउ डू यू ब्रिंग आउट कोहेसिवनेस इन आवर कल्चर, है ना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन इट। यस, तो वो नहीं हो पा रहा है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हमने 10 साल में अगले कुछ कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाए विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद यस, द स्टेट गवर्नमेंट, यस। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज with our political, I would not say political, but whatever our Kashmiri Pandit organizations जैसे to come together. पनन कश्मीर आप बोल रही हैं, पनन कश्मीर का जैसे आपने कहा। Panam Kashmir है, and there are also couple of others. So There are a couple all of of them others. also. We have we have Kashmiri Sabha also here in Chandigarh and Panchkula and all. वो But मतलब they अभी don't collaborate together. That has been the problem. अगर हम सारे इकट्ठे हो to जाएं, some extent I feel that they cannot also collaborate together unless they really have that intent. अभी हुआ जी, क्या, जब कश्मीर, मेरा हिसाब है, मैं बहुत छोटी थी जब मैं एक्सोडस हुआ था, जी, जी, पर मेरा ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि जब ये अब सब लोग स्प्रेड आउट हो गए हर जगह पे, जी, और हर जी, जी, जगह पे फिर उन्होंने लोकल इनिशिएटिव्स बनाए कि भाई कैसे हम प्रिजर्व करें। सो जी, जो हमारी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हम कश्मीरी बट सभा बोले या जो भी है ऐसे कश्मीरी जी, जो सभाएं हैं, वो सब बहुत ही कल्चरल इन नेचर है। जी, तो कल्चर तो एक एस्पेक्ट है, तो कुछ हद तक उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जी, कल्चर प्रिजर्व किया कुछ हद तक, हाँ, एटलीस्ट इन द जी, जी, लास्ट जी, जनरेशन। अभी नई जनरेशन में, मेरी जनरेशन में भी थोड़ा और डिफिकल्ट है, क्योंकि उतना सेंस ऑफ टुगेदरनेस नहीं आ रहा है। yes, okay, yes, that is the एवरीबडी इज, point. हाँ That is नहीं the मतलब पर point. ये है, क्योंकि अब सब लोग इतना, सी द लाइफ दैट वी हैव लिव्ड एज ए ओवरऑल ना, हमारा कल्चर इज ऑल्सो, आजकल लोग 12-12 घंटे काम करते हैं। आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, आप किसी, यू नो, यूर टॉकिंग टू समबडी इन सम अदर कंट्री, जी, तो वहां से अब आप हाउ डू यू कीप दैट कश्मीरी एंगल अलाइव? आई थिंक वो बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत सो मुश्किल, इट्स, बिल्कुल सही। सो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी मेरे ख्याल से वो बहुत सोशल रही है इन नेचर, सोशियो कल्चर रही है इन एक लीडर नेचर। नहीं बना सकते, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, वही वही एक दिक्कत रही है। अब नहीं हो सकते, आई डोंट थिंक, मुश्किल भी है, मुझे नहीं, मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स नाउ अ लॉट ऑफ इंटेंट फ्रॉम जो हमारे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, और हो जाएगा मेरे ख्याल से। आई एम रियली होपफुल कि दे रियली सी थ्रू द नीड, क्योंकि यस, अगर हमने अभी अपने 5-7 साल में हमने अपने आप को प्रिजर्व नहीं किया, वी डोंट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, जी, वी जी, डोंट हैव जी, अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ डू वी डू इट, वी जी, विल जी, डेफिनेटली लूज इट आउट। यस, तो अभी वो सोलो वाला, यू नो, टू it's very difficult to go, to kind of, be on your own solo path, so we have to all kind of converge, and we have to यस, converge with all of these constraints already, like we are not co-located। हमारी अब भाषा भी, अब मोस्टली लोग कश्मीरी नहीं बोलते हैं, एटलीस्ट इन बिल्कुल माय, सही, बिल्कुल सही। बहुत, हाँ, बच्चे नहीं सीख पा रहे अब वो, क्योंकि यूटिलिटी नहीं है उसका। हाँ, आपको क्योंकि किससे बात घर करनी है में कोई कश्मीरी में? आप बोल भी बाहर नहीं जाके रहा इंग्लिश है, में बात कर रहे हैं, ज्यादा ऑफिस में इकट्ठे। इंग्लिश में कर रहे हैं, घर में हिंदी में कर रहे हैं, या घर के बाहर हिंदी में कर, तो बहुत बहुत लिमिटेड हो गया है उसका। तो वो भी मतलब, these are challenges, doesn't mean कि हम इनके, we can't overcome them, यस, but these are challenges to recognize and to then have a strategy which works
on these. तो एक वो political togetherness लाना बहुत ही जरूरी है मेरे ख्याल से, for us to be able to negotiate well with the government and for us to kind of get our space back in the valley. वैली वैली धन्यवाद रुचि जी, ये जो आपने इतना सब बताया, ये बहुत, मैं इससे जो पॉइंट्स ले पाई हूँ मैं कुछ साझा करना चाहूंगी। एक तो कल्चरल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, एक एजुकेशन बहुत जरूरी है कि कश्मीरी कम्युनिटी को उसकी हिस्ट्री बताई जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिसिंग है वहाँ से। थर्ड, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है, इकोनॉमाइज अपनी एक चरम सीमा पे आती है, डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंटल चेंजेस में भी बहुत कुछ आ जाएगा, विच विल आई थिंक फोर्टिफाई फॉर कश्मीरी पंडित्स ऑल्सो टू कम बैक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सोशली तो हम सारे हैं एक साथ, बट हम इसको इकट्ठा इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज हमारे अपार्ट फ्रॉम रीजन डिफरेंसेस, रिलीजन डिफरेंसेस, हमने अपने आप को कह तो दिया हम कश्मीर से हैं, बट हम कश्मीर जा नहीं पाए। तो हमें वो चीजें भी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू गैदर फ्रॉम योर एंटायर दिस थिंग। एंड जो विमेन एंड माइनॉरिटीज के लिए आपने बताया कि विमेन एंड माइनॉरिटी के स्टेटस में बहुत इफाजा, बहुत इजाफा, बहुत अच्छा हो गया है हमारे लिए, तो वो चीज ले जाना कि नाउ दे हैव देयर राइट्स, दे कैन मैरी एनीबडी दे वांट एंड विदाउट एनी फियर ऑफ फेवर की अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, अपना लैंड नहीं बाय कर सकती हूँ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव चीजें आपने बताई हैं कि सरकार ने की है, बट आगे भी इसमें करना बहुत कुछ है, वो भी आपने बता दिया। तो इसके लिए धन्यवाद। आज का जो ये रहा है संवाद, ये बहुत बढ़िया रहा, ये जानकर कि आज आपने अपना समय निकाला कीमती। मैं इस चीज के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ रुचि जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब एंड I don't know what I was doing at your age, so I certainly was not thinking about the community. So I think more power to you, and thanks a lot for initiating this and for hearing me through. जी रुचि जी, बस हाँ हाँ जी रुचि जी, जाते हुए मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जैसे आप कहते हैं बहुत छोटी थी जब ये सब चीज हुई, तो आपका वो नजरिया क्या था जब ये सब हुआ? आप इसको कैसे लेके चलती थी? बस थोड़ा सा चंद लाइन की, आप कैसा महसूस करती थी जब ये चीज हुई? आपके इनिशियल वो कुछ कहते हैं कुछ पास्ट इवेंट्स में कुछ तो रिकॉर्डिंग रह जाती है, व्हाट इट फेल्ट लाइक? डिड यू फील एलियनेटेड? डिड यू फील कि अब बस पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पे जा सके या उस जगह को देख सके जहां हमारे माता पिता, ग्रैंड फादर्स एंड ऑल, हम हमारी एक पीढ़ी थी वहां पे? तो वो क्या फीलिंग थी, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। व्हाट वाज दैट फीलिंग? बिकॉज we are generally Kashmiri Pandits are not able to express it in words. We are not able to convey it to people how actually we feel of what it has happened. We are being very subtle about it. That has been always our problem. I think it's not, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि it's not us who are subtle about it, but it's also the media which is not giving us the space to talk about it. It's only now that with the social media coming, and हमारे पास इसके बहुत clear cut examples हैं. आप देखो, look at the Bollywood industry. I mean, we make I don't know how many pictures we make every year. So how many pictures or how many narratives around the Kashmiri Pandit exodus, genocide have really happened? Nothing. We really have very lame and very, I would say, less impactful pictures which have come, and that to one which came quite recently, but which very, very nicely just absolves everybody else of the situation of the violence. Yes, the violence which ensued. The real violence. कोई शो नहीं कर रहा real violence. Media is, हमारा Bollywood is so Twitter kind of driven कि वो हमारे ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, because I think we don't fit in the overall narrative. एक तो हम Hindus थे in a population and in a system which has already appeased the minorities. Yes. And although we were in minority in the state, in Jammu and Kashmir, we don't, somehow with the political system, somehow with the media system in the country, we could never get that space, because we are outliers of the general narrative. We're not part of the general narrative जहाँ पे हमेशा हम एक मुस्लिम लिंचिंग को बहुत ध्यान दे देते हैं, लेकिन अगर वैसा ही किसी और कम्युनिटी में हो रहा हो हम उसको इग्नोर मार दें। तो वैसा ही हमारे साथ भी हुआ, और स्पेशली हमारा जो हुआ अनफॉर्चुनेटली इज ऑल्सो प्री द सोशल मीडिया वेव। तो तब अगर व्हाट्सएप वगैरह होता शायद बात अलग होती, तब तो फोन भी नहीं थी। और मुझे याद है जब ये मतलब जो मैंने एटलीस्ट सुना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई रिकलेक्शन ऑफ दैट टाइम इज वेरी इनहेरिटेड,
मैं छोटी थी उस समय पे, तो इट्स वेरी इनहेरिटेड मेमोरी से जो मुझे मालूम पड़ा है कि उस टाइम सबके फोन काट दिए। तो एक कश्मीरी फैमिली, पंडित फैमिली, दूसरी कश्मीरी पंडित फैमिली को भी रीच आउट नहीं कर पा रही थी ऑन दैट डे और द वीक 19 जैन। तो वो दोज आर हॉरिफिक इंसिडेंट्स। और मुझे सिर्फ हमारा टोटल ना, मतलब दे एंटायरली वाइट वॉश द होल कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, सब बाहर से आए थे, which I don't think is the right narrative to follow. And that's why I feel the first step of reconciliation should be from the Kashmir saying कि यार सी ऐसा हुआ था, and we do understand ये गलत था, and we did that. जो लोग हमारे घर, जिन्होंने हमारे घर लूटे या जिन्होंने हमें आके घरों में धमकाया, वो हमेशा बाहर के लोग नहीं थे, वो हमारे ही वहाँ पे फ्रेंड्स और एक्विटेंसेस और कुलीग्स थे, जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा, जिनसे उम्मीद नहीं थी, जो हमारे एकदम जैसे बोलते हैं ना कि सहारा थे हमारे वहाँ पे, वो लोगों ने बैक स्टैप किया। तो इसको एकदम नलिफाई करना मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और समहाउ हमारा जो नरेटिव है इन द वाइडर इंडिया सेंस, वो ऑलवेज हैज बीन, वो हमेशा इसके ऊपर ही रहा है कि हाँ ये एक पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन माय व्यू, इट इज अ रिलीजियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन माय व्यू, राइट। और उसको काउंटर कर सकते हैं बिकॉज दिस ऑल्सो शोज दैट एज अ स्टेट इन इंडिया, मतलब हम लोग ने एज एन इंडियन स्टेट हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि वी विल ऑलवेज हैव दीज रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स, चाहे वो खालिस्तान रही हो या चाहे वो कश्मीर रहा हो। तो आप अगर अनलेस हमारा एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर करने का, वी विल ऑलवेज be defeated at this, we will always be at the losing ends. My other thing, yeah, so I think these are important points, or some another thing which I think did not work for us, and I want to bring this out, is also the fact that we are Brahmins probably. Although उतना भी नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि हमारे वहाँ पे दलित भी जो थे, I think you probably would have already known about the Valmiki community वहाँ पे, जो पंजाब से आई थी, right? So ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ पे दलित पार्टीज came out and they said okay चलो हम इनकी हेल्प करते हैं, उन्होंने उनको भी इग्नोर किया। So this also shows how strong the other narrative is, कि इवन जो हमारे वहाँ पे दलित थे उनको भी वो भी पिसते रहे, और शायद हमसे हमारे जितना ही पिसे वो कश्मीरी, मतलब मैसेकर नहीं हुआ उनका, बट एटलीस्ट बट हम थे, हमारा मैसेकर इसलिए हुआ बिकॉज़ वी वर अ ब्राह्मण कम्युनिटी, व्हिच इज वी वर द हिंदूज। बट और वो वाइडर इंडिया नैरेटिव में हमें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक तो हिंदूज भी थे और ऊपर से ब्राह्मण्स भी थे शायद। बिल्कुल सही। Although I really don't believe in this Brahmin etc. I know, but then we can't change other person's view. I know, हम अपना ये व्यू रख सकते हैं क्योंकि हम ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे ये नैरेटिव नहीं सिखाया गया, बट वो किस माहौल में पले बड़े हुए हैं, उनको क्या नरेशन बताई गई है। कश्मीर में ये तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से ऐसा कुछ था नहीं, वही तो। I do not know of any other, मतलब सभी लोग एक ही साथ थे। Yes. We never had this. We had the religious divide, of course. We had Muslim, but not this. Yeah, but never caste system. But for the rest of India, we ended up being Brahmins somehow. So ना हमें mainstream party जैसे कांग्रेस थी, ना उनका support मिला और ना left parties का support मिला. That's what kind of led to our. शायद यही हमारे लिए disadvantages भी था। हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसा हो गया. And we lost track. Everybody has forgotten about it. The way history works, I feel it's almost like एक आध चीज कहीं से याद रहती है. And with every day, every single passing day, history is just taking away some of our incidents. So अब एक आध चीज किसी को याद है, बाद में वो massacre और वो एक rape case और टीका लाल टपलू, बट उसको छोड़ के वहाँ और 600 केसेस थे। बिल्कुल सही। हम उसका नरेशन नहीं कर पाए। किसी को ये भी नहीं मालूम कि एक भी केस में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़ के एक भी केस में शायद मैंने जितना सुना है कि कुछ मतलब किसी तरह का भी कोई किसी को ना पकड़े ना इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो मतलब बात सही। अगर यही चीज अगर मैं कंपेयर करूं विद एनी अदर इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड इन पंजाब और इन ऑल,
So it will be fair to say कि justice has been served in lot many cases in comparison to our people in Kashmir. हाँ कश्मीरी community में जो suffering हुई है, it has not been even acknowledged. जस्टिस तो बहुत दूर की बात है. ये these parting words of yours मैम, ये बहुत चीजें एजुकेट भी करेगी आने वाली पीढ़ी को, और बहुत हाईलाइट भी करती है कि एक्चुअली सफरिंग कितनी रही है कश्मीरियों की, कश्मीरी लैंड में ही. तो ये एक या रिक्वायरमेंट भी था. एंड द फैक्ट कि वी वर नॉट द वंस हु एग्रेस्ड, वी वर द वंस हु वर एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ आवर ओन लैंड for our या religion. So एब्सोल्युटली. that is something which is a parting words of yours. I'm thankful कि आपने ये अपने शब्द साझा किए. ये बहुत जरूरी था कि हमारी कम्युनिटी से भी ये आके सब बताएं कि उनका दर्द क्या है, उनकी क्या तकलीफें रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, और आगे क्या डीकमीशनिंग आर्टिकल 370 से हम एक्सपेक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच रुचि जी.